Good morning, class. I am Niklesh Mishra, your computer teacher. So, class, we discuss or continue our chapter Adobe Photoshop. So, student, in the previous video, we discussed that marquee tools in brief. So, after that, we have the next tool, that is the lasso tools. So, student, this tool allow you to select a part of an image in freehand form, that is irregular shape, means जिसका कोई shape ना हो, and it is the bunch of three different tools, namely lasso tool, polygon tool, polygon lasso tool, and magnetic lasso tools. So they have three types of tools in the lasso tools. So अगर स्टूडेंट हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो lasso tools is mainly used for selection the image, and it contains three useful tools for selecting irregular shape by a drawing around border around it. So student, when we click on a small triangle of lasso tool, so it shows the three options, that is the lasso tools, polygon tools, and polygon lasso tools and magnetic tools. So these are the lasso tools. So student, if we open this tool, simply हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे कहाँ पे, lasso tool पे, and the different lasso tools are displayed. Then we select polygon lasso tool. So click on once of any part of image and drag the mouse around the part of image that is to be selected, then release the mouse button at the end point, part of image is selected in free shape like this. Here we see हमने एक इमेज का जो आपका पॉलीगन लेजर टूल्स था उसके थ्रू हमने एक इमेज का इतना हिस्सा सेलेक्ट किया. सो दिस इज़ द वे, या दिस इज़ द मेथड बाय विच you select the image. After that is your polygon lasso tools. So polygon lasso tools क्या होता है? So polygon lasso tools आपके lasso tools में ही था, and this will be open. हमें करना क्या है, when we open the required image, click on the polygon lasso tools. फिर आपको क्या करना है, click once at the any part of image, मतलब किसी भी इमेज के को आपको क्या करना है, एक पार्ट को सेलेक्ट करना है, एंड मूव द माउस को आपको उस इमेज के चारों तरफ या जहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पे आपको मूव करना पड़ेगा. देन क्लिक पॉइंट, then a line will follow your polygon lasso. Then click again at the point a line is drawn between the two mouse. Click point at the continuous the process to be selected desired area. Close the marquee by clicking at the starting point. Release the mouse at the end point. So this is looks like this. So student, in the polygon lasso tools, simply it helps to select an area of a picture based on straight side polygon shape, means it forms a selection border by drawing a straight line around the segment to the selected. It can draw as many sides as we want. So students, select polygon lasso tools and follow the same step as given as we discuss in your lasso tools. So this is the method of lasso tools. After that is your next is magic wand tool. So magic wand tools आपके क्या होते हैं? So student, magic wand tools means this tool create a magic by automatically selecting large area of an image that are similar in color. Means होता क्या है कि from with the use of this tool we allowed to select an area of image based on its color. So when magic wand is used, then adjacent area of the same color automatically gets selected, and simply the select magic wand tool. So we follow the same step like in the polygon lasso tools. Simply we can open the image and click on the magic wand tool,
set the tolerance anti-aliased and contiguous option as desired means आप यहाँ पे देख सकते हैं images. So here we see two types of images and how we select. यहाँ पे इन्होंने white portion को selection किया है as desired and move the cursor on the color to be selected and click left mouse button means हम क्या करेंगे, माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे and all the area of image with similar color are selected as per specifications which we discuss. So this is your magic wand tool. After that student is your move tool. So the move tool, this tool is used to move the selected part of an image, from location to another location means simply this tool is used to move a selected part of an image to a different place in a file means you change your location of an image. So for this we simply see the picture here for using the move tool. By the using of move tools हमने इस टूल्स की हेल्प से इतने को पार्ट को सेलेक्ट किया एंड देन मूव कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज के दो पार्ट्स हो गए, देखिए. सो दिस इज़ द मूव टूल ऑप्शन. सो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सिंपली कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. मूव टूल के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ओपन द इमेज एंड सेलेक्ट द पार्ट टू बी मूव्ड मीन्स हमें इमेज को ओपन करना है, जिस पार्ट को हमें सेलेक्ट करना है या मूव करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे. देन क्लिक ऑन द मूव टूल और प्रेस कंट्रोल वी मीन्स इसकी शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस वी, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं. एंड पॉइंटर चेंज टू दिस साइन, मतलब जब आप जाएंगे तो ये रहेगा, उसके बाद जब मूव के लिए जाएंगे तो आपका ये पॉइंटर चेंज होकर के इस टाइप में आ जाएगा. एंड आफ्टर दैट मूव माउस पॉइंटर टू बी सेलेक्टेड एरिया एंड ड्रैग इट टू बी न्यू लोकेशन. आप उसको नई लोकेशन पे जस्ट लाइक दिस आप मूव कर देंगे एंड द सेलेक्टेड पार्ट इज़ मूव टू द न्यू लोकेशन. आपकी जो सेलेक्टेड इमेज है वो न्यू लोकेशन पे मूव कर जाएगी. सो दिस इज़ द मूव टूल एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट इज़ योर आफ्टर दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग इज़ योर क्रॉप मीन्स अगर आपको इमेज को क्रॉप करना है, सो क्रॉप के लिए आप क्या करेंगे. सो स्टूडेंट फर्स्ट थिंग इज दैट क्रॉप क्या होता है. सो क्रॉप इज़ द टूल विच इज़ यूज टू रिमूव अनवांटेड एरिया ऑफ एन इमेज मीन्स क्रॉपिंग का सिंपली अगर हम मतलब देखें तो क्रॉपिंग का मीन होता है ट्रिम एन इमेज बाय एडजस्टिंग इट्स बाउंड्रीज. सो दिस टूल इज़ यूज टू रिमूव और हाइड पार्ट ऑफ एन इमेज दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं रहती. सो स्टूडेंट simply when we select an area of a picture with color tool, it makes the selected area and deletes everything outside it. So it is used color shades as a useful visual clues while making a crop. So to crop an image we see the picture on our screen how we crop an image. So for this we simply follow the steps. Simple, first we open the image and select the crop option. हमें क्या करना पड़ेगा, crop option को select करना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट जब आप crop option को select करेंगे तो आपका माउस पॉइंटर इस तरीके से होगा और आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस CV का भी यूज़ कर सकते हैं. एंड जब आप मूव करेंगे तो पॉइंटर साइन विल बी लाइक दिस. एंड after that the cropping section you drag it on the image to select the desired part like this. A cropping border is displayed. You can change the selected size using drag handles and the selected part of image is known as cropping marquee. This is we called cropping marquee. क्या कहेंगे इसको, cropping marquee. So this is the cropping marquee area and
जब आप इमेज को क्रॉप कर लेंगे, यानी कि क्रॉपिंग मार्क्यू का यूज़ कर लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इमेज को किस तरीके से क्रॉप करने के लिए यूज़ किया, ये आप देख सकते हैं लाइक दिस। एक सेकेंड, ये आपने क्रॉपिंग के लिए इतना इमेज को सेलेक्ट किया और आफ्टर दैट जब आपने क्रॉप कर लिया तो आपकी इमेज इस तरीके से क्रॉप करके आपके सामने आ गए। दिस पिक्चर शोज आफ्टर द क्रॉप टूल। सो हमने जब मार्क्यू सेलेक्ट कर लिया क्रॉपिंग का, देन आफ्टर सेलेक्टिंग द मार्क्यू प्रेस एंटर की और टू फाइनलाइज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द शेड्स पार्ट आउट ऑफ सेलेक्शन, तो आप उसको अलग कर लेंगे। सो बाय दिस मेथड यू कैन क्रॉप द इमेज। मीन्स क्रॉपिंग का मतलब सिंपली है टू ट्रिम एन या टू ट्रिम अ इमेज। आफ्टर दैट स्टूडेंट, ये सारे टूल्स के यूज़ के बाद आपको क्या करना है, आपके फ़ोटोशॉप से बाहर आना है, क्योंकि हमने जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अभी तक डिस्कस किया, हमें वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर के बारे में जानना होता है। आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर क्या काम में आता है वो हम जानते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद हमें ओपन करने का तरीका, सेव करने का तरीका, एंड एट लास्ट उसका जो क्लोजिंग का तरीका है। सो ये चीज़ें हर एक सॉफ्टवेयर में आपको पढ़ने को मिलेगी, एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आपको अगर इमेज को या आपको फ़ोटोशॉप को क्लोज करना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन एग्जिट फ़ोटोशॉप बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मीन्स these are the method by which you exit from the your Photoshop। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, क्लिक ऑन फाइल, आप फाइल मेन्यू पे चले जाइए, वहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन होगा, आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की Ctrl+Q का ऑप्शन कर सकते हैं यूज, या Q की का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द सेकेंड मेथड, एंड द थर्ड वन एंड लास्ट इज़ योर प्रेस Alt+F4। दिस इज़ द मेथड also by which you exit from your Photoshop। So this is the your Photoshop chapter, that is your, this chapter is your completed। So in this chapter student, हमने फर्स्ट थिंग एडोब फोटोशॉप क्या होता है उसके बारे में जाना, CS5 क्या था वो हमने जाना। आफ्टर दैट हमने स्टेप्स जाने की किस तरीके से आप किसी भी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। आफ्टर दैट हमने पार्ट्स ऑफ फोटोशॉप विंडोज़ को डिस्कस किया था, जहाँ पे एप्लीकेशन, मेन्यू, ऑप्शन बार, टूल बार और पैनल्स के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट में फिर हमने टूल्स पैनल के बारे में डिस्कस किया था। सो जो अभी हमने टूल्स पढ़े थे वो सारे टूल्स ब्रीफ में एक बार मैंने और भी बता रखा है। देन लास्ट हमने फिर वर्किंग विद फ़ोटोशॉप पढ़ा था। फिर हमने वर्किंग के बाद सेव का सिस्टम पढ़ा था कि हाउ वी सेव अ फाइल। आफ्टर दैट सिलेक्शन टूल में आपका मार्क्यू, लेजो, मैजिक वॉन्ड, पॉलीगन, मूव टूल, क्रॉप टूल को पढ़ा, एंड लास्ट एग्जिट फ़ोटोशॉप। सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एंड आपकी जो एक्सरसाइज हैं ये PDF में आपको सेंड कर जाएंगे। सो प्लीज़ टेक केयर और वीडियोस को देखते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई भी कमेंट्स, कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो प्लीज़ उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।